Good morning, student. Today I will discuss the magnetic field pattern due to a circular loop और circular wire carrying current. अगर किसी वायर को अगर हम किसी सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें हम करंट को सप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में ज़रा सा डिस्कस करते हैं। जो है देखिए, वी नो डैट व्हेन करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट वायर। आप जानते हैं कि जब भी जो है किसी स्ट्रेट वायर में करंट प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इंक्रीजेज instead of using a straight wire. The wire is converted into a circular loop. In figure number 14, a circular loop or circular wire is fixed to a thin cardboard sheet. देखिए, एक सर्कुलर लूप को जो है एक फिक्स करते हैं कार्डबोर्ड शीट में जो है, और हम एक करंट सप्लाई करते हैं जो है। तो जैसे ही हम करंट बैटरी के द्वारा सप्लाई करते हैं तो करंट की डायरेक्शन ये है। अब देखिए, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे घूम घूम के जाएगी जो है। तो देखिए, एक राउंडिंग जो है वो बनेगी जो है। तो व्हेन ए करंट इट पास थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज शोन इन द फिगर नंबर दिस. The magnetic field lines are circular near the current carrying loop. As we move away from the concentric circle representing a magnetic field lines become a bigger and bigger. At the center of circular loop, the magnetic field lines are straight in figure number this. By applying a right hand thumb rule, it can be seen that each segment of circular loop carrying current produce magnetic field lines in the same direction within the loop. At the center of the circular loop, all the magnetic field lines are in the same direction and at each other, due to which the strength of the magnetic field increases. तो देखिए, इसके सेंटर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा होगी जो है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो चारों तरफ जो है होगी और वो एक लूप के अकॉर्डिंग होगी, यानी एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाएगी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है। और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि जब आप जानते हैं कि अगर किसी वायर में अगर हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं तो जो है वहाँ पर एक सर्कुलर लूप जो है मतलब बन जाता है और उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगती है जो है। तो देखिए, यहाँ पर क्या कंक्लूज़न निकल के आता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर इज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द, यानी जितना ज़्यादा अगर हम करंट को इसमें सप्लाई करेंगे जो है एक सर्कुलर लूप में, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा जो है वो क्रिएट होती है। इसके आगे देखते हैं ज़रा सा सेकेंड कंडीशन क्या होती है। सेकेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर. In this discussion, we have considered the magnetic field produced by a circular loop or circular wire which consists of only one turns of the wire. The strength of magnetic field can be increased by taking circular coil consisting of a number of turns of insulated copper wire closely wound together. Thus, if there is a circular coil having n turns, the magnetic field produced by the current carrying circular wire will be n times as larger as that produced by a circular loop of a single turns of the wire. This becomes the current in each circular turns of coil flow in the same direction, and magnetic field produced by each turns of a circular coil then just add up. We can now say that the strength of magnetic field produced by a circular coil carrying current is directly proportional to the both number of turns and current I, but inversely proportional to the radius. Thus, the strength of magnetic field produced by a current carrying circular coil can be increased by increasing the number of turns of the coil, and by increasing the current flowing through the coil, and by decreasing the radius of the coil. यानी जितना नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितना सर्कुलर लूप बनेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जितना उसकी रेडियस
ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही जो है वो क्या होगा, डिक्रीजेज होता आएगा। यानी हम कह सकते हैं जो है कि सर्कुलर लूप में उसके सेंटर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होगी, और लेकिन उसके दूर हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस होती जाएगी जो है। थैंक यू वेरी मच।